خلافت عثمانیہ کے عظیم فرمانروا سلطان سلیم اول کے دور کی داستان خدنگ عثمانی قسط نمبر 5۔ صفی الدین نے اسی وقت اس مفہوم کا ایک خط لکھ دیا۔ اس خط پر ذکریہ اور اس کے خاص آدمیوں کے دستخط بھی کروا لیے گئے۔ یہ مہمان چند گھنٹوں کے بعد واپس چلے گئے۔ اس دن صفی الدین اتنا خوش تھا کہ اس نے نوجوان ذکریہ کو اپنے بیوی بچوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور فرط جذبات میں اعلان کر دیا کہ ذکریہ کو وہ اپنے خاندان کا ہی ایک فرد سمجھتا ہے اور اس کا جینا مرنا ذکریہ کے ساتھ ہوگا۔ ذکریہ نے صفی الدین کی 3 بیویوں کو دیکھا۔ ان میں 2 بہت خوبصورت تھی اور 25 اور 30 سال کی درمیانی عمروں کی رہی ہوں گی، لیکن تیسری بیوی 40-45 سال کی تھی اور بہت موٹی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے 6-6 7-7 اولادیں تھیں اور ان میں چھوٹی سے چھوٹی اولاد تقریباً 4 سال کی رہی ہوگی۔ صفی الدین نے ذکریہ کو اپنے خاص کنبے کے سامنے کھڑا کر کے اعلان کیا کہ یہ ذکریہ اور اس کے ساتھی اب اسی کے قبیلے میں شمار کیے جائیں گے اور ذکر اس کے آدمیوں کو رشتہ مواخات میں جکڑ دیا جائے گا۔ ذکریہ نے جواب دیا، میں اس رشتہ مواخات کو شکریہ کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ تقریباً شام سے پہلے صفی الدین نے اعلان کر دیا کہ آج رات اس خوشی میں ایک جشن برپا ہوگا اور اس جشن میں لوگ خوب کھائیں پیئیں گے۔ شام کو میدان کے ایک بڑے ٹکڑے کو کنکر پتھر سے صاف کر دیا گیا۔ اس پر پانی کا چھڑکاؤ ہوا، مویشیوں کو ذبح کر کے ڈال دیا گیا۔ پتھروں کے ٹکڑوں سے چولہے بنائے گئے اور ان پر دیگیں چڑھا دی گئیں۔ دیگوں میں گوشت اور مسالے ڈال کر چولہوں میں آگ دکھا دی گئی۔ پکانے والے کے ڈومے اور دوسرے آلات مطبخ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ آگ نے بھاپ اڑائی تو ناکوں میں خوشگوار اور لطیف خوشبوؤں کا جھونکا گھسا چلا گیا۔ بھوکوں کی آنتیں کل ہولہ پڑنے لگیں۔ رات کو کھانے پر بڑی ہلڑ بازی ہوئی اور مہمانوں اور میزبانوں کو یکساں لطف حاصل ہوا۔ صفی الدین اور اس کی قوم کے لوگ بہت خوش تھے کہ انہوں نے سلطان کے خلاف 40,000 بے نام شمشیریں ہاتھ آ گئی ہیں، اور ذکر اس لیے بہت خوش تھا کہ سلطان کی خدمات بأحسن انجام دے رہا ہے اور اپنے سلطان کے مخالفوں کا اعتماد حاصل کرنے میں غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس رات ذکر اور صفی الدین نے ایک ہی چھت تلے اپنا وقت گزارا۔ صفی الدین نے اپنے برابر والے کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کر دیا تاکہ باہمی دوری کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ اب ان کے کام اور روزمرہ کے مشاغل مشترک ہو گئے تھے اور ان کی بیگانگی یگانگی میں بدل چکی تھی۔ نمازیں ایک جگہ ادا ہوتی، روزگار میں ایک دوسرے کا تعاون حاصل رہتا، کھانا ایک جگہ کھایا جاتا۔ دوسروں کی بنسبت ذکریہ صفی الدین اس کے خاندان میں زیادہ گھل مل گیا تھا۔ جب صفی الدین کی 3 بیویوں کی اولاد پر مشتمل کنبہ ہنستے مسکراتے ذکریہ سے مخاطب ہوتا تو اس کے دل کی عجیب سی حالت ہو جاتی۔ تینوں بیویوں کی 2 جوان اور 5 10 12 سال کی لڑکیاں تھیں۔ ان لڑکیوں کے کیا نام تھے اسے یاد نہیں رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ کسی کا نام کسی سے منسوب کر لیتا، لیکن ان میں ایک ایسی بھی لڑکی تھی جس کے نام اور شکل میں وہ ذرا بھی دھوکہ نہ کھاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام ناہید تھا۔ ذکریہ کو ناہید کی صورت و شکل، ناز و انداز اور آواز کے ترنم میں فلکی ناہید کی جھلک محسوس ہوتی تھی۔ یہ صفی الدین کی سب سے عمر رسیدہ بیوی کی بیٹی تھی۔ تقریباً 13-14 سال کی لڑکی مسکراتی تو ذکریہ کے رگ و پے میں کیف و مسرت کی لہریں رواں ہو جاتی، بولتی تو کانوں میں مترنم نغمے گونجنے لگتے، چلتی تو آہوئے صحرا کی طرح ایک شان دل نوازی اور ساحری سے۔ وہ غیر محسوس اور غیر ارادی طور پر ناہید کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ وہ جب بھی ذکریہ کے سامنے آتی وہ سب کچھ بھول جاتا، لیکن اس کیف و مسرت میں اس کو سلطان اور استاد ارسلان کی نصیحتیں اور ہدایتیں بہت پریشان کرنے لگتی۔ سلطان کی تاکید کے سنان پاشا کی مکمل وفاداری اور کچھ نہیں، استاد ارسلان کی ہدایت کے لڑکیوں اور عورتوں سے دور رہنا، کیونکہ جن مردوں اور نوجوانوں کو عورتیں اور لڑکیاں فتح کر لیتی ہیں وہ زندگی کے بیشتر محاذوں پر ناکامی رہتے ہیں۔ اس کو بحیرہ معمورہ کے شمالی ساحلوں کے خانقاہی سلسلوں میں آباد راہب یاد آتے ہیں جو دنیا داروں کو دنیا سے فرار عورتوں سے بیزار رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سلطان، استاد ارسلان اور تارک الدنیا راہب ان معماروں میں اور ہندسوں کی طرح تھے جو شباب کی سرکش اور بلاخیز امواج کے سامنے بند باندھ دیا کرتے ہیں۔ ناہید کی موجودگی ان تینوں کے باندھے ہوئے بند کو ہلائے دے رہی تھی۔ وہ ناہید کو شجر ممنوعہ سمجھنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن یہ شجر ممنوعہ اس کو پوری شدت اور قوت سے اپنی طرف کھینچتا رہا۔ اسی دوران سنان پاشا کا ایک آدمی آ گیا اور اس نے زبانی بتایا کہ سنان پاشا نے ذکریہ سے سلطانی منصوبے پر عمل درآمد کی تفصیل مانگی ہے۔ وہ بڑے پس و پیش میں پڑ گیا۔ صفی الدین، اس کا خاندان، ناہید، ان کی قوم کے لوگوں کا اخلاق، میل محبت، یہ ساری باتیں ذکریہ کے کردار اور ارادوں میں تزلزل پیدا کر رہی تھی۔ سنان پاشا کے قاصد نے زبانی صاف بتا دیا تھا کہ اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، سلطانی منصوبے پر آخری اور قطعی عمل درآمد کا وقت آ چکا ہے۔ ذکریہ نے اس سے 2 دن کے لیے روک لیا کیونکہ سنان پاشا کو تفصیلی اور تحریری جواب دینا تھا۔ صفی الدین نے سنان پاشا کی قاصد کی بابت دریافت کیا، یہ کون ہے؟ ذکریہ نے جواب دیا، یہ بھی میرے ہی جیسا سلطانی معتوب اور آوارہ وطن ہے جو اپنے قبیلے والوں کو یہ پیغام لے کر آیا کہ سلطان کو سبق دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ پتہ نہیں کس وقت مار کا پیش آ جائے۔ صفی الدین نے کہا،
तो अपने आदमी से कह दे कि हम भी तैयार हैं और ये मार्का जिस वक्त कभी पेश आएगा इन्हें तकरीबन 70,000 बेनियाम तलवारें अपनी मदद को तैयार मिलेंगी। जिक्रिया ने जवाब दिया, मैंने आपकी तरफ से नहीं यकीन दिला दिया है। सफीउद्दीन किसी काम से चला गया। जिक्रिया जरा फासले पर बैठी नाहिद को देखने लगा। वो किसी काम में मशगूल थी। इसकी जुल्फे दाहिनी तरफ शाने पर से गुजरकर सीने पर आ गई थी। चेहरा झुका हुआ था। जिक्रिया सोच रहा था कि क्या यह फासला हमेशा कायम रहेगा या कभी ख़त्म भी हो सकता है या इसमें और इजाफा हो जाएगा। वो नाहिद में मौजूद गैर मरई लेकिन इस सहर अंगेज और पुरकशिश कुव्वत को समझने की कोशिश कर रहा था जो मकनातीस की तरह इसे अपनी तरफ खींच रही थी। इसके दिल में मीठा मीठा दर्द हो रहा था और कायनात में नाहिद से ज्यादा अच्छी और हसीन शय का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। किसी किसी लम्हे नाहिद भी से देख लेती थी। जिक्रिया अपनी जगह से उठा और नाहिद के पास जा खड़ा हुआ। इसने देखा नाहिद खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। जिक्रिया इसकी सूरत देखने में ऐसा महव हुआ कि आसपास का होश न रहा। नाहिद ने जिक्रिया की मौजूदगी को महसूस कर लेने के बावजूद इस पर कोई खास तवज्जो न दी। वो आटा गूंदने में मशगूल रही। कुछ देर बाद नाहिद आटा गूंद चुकी और हाथ पानी से धोकर खड़ी हो गई। इसने सरसरी नजरों से जिक्रिया की तरफ देखा और बेइतनाई से कहा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम रुसवाई से नहीं डरते? जिक्रिया नाहिद की आवाज़ सुनकर अपने आप में नहीं रहा। वो चौंक कर अपनी दुनिया में वापस आ गया। बोला, लड़की, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ और मेरी यादाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो मैं यही कहूँगा, शायद तेरा नाम नाहिद है और तू अपने बाप की सबसे बड़ी बीवी की लड़की है। नाहिद ने मुंह फेर के बेमरोबती से जवाब दिया, ये सब फजूल बातें हैं। मेरे पास ऐसी वैसी बातों की गुंजाइश नहीं। तुम यहाँ तक जिस काम से आए हो जल्द से जल्द इल्जाम दो और अपनी जगह वापस जाओ। जिक्रिया ने घबराहट में कहा, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तेरा नाम नाहिद नहीं? नाहिद ने फटी फटी नजरों से जिक्रिया को देखा और जवाब दिया, अगर मेरा नाम नाहिद है तो इससे तुम्हें क्या फायदा पहुंचेगा? तुमको इस वक्त तो बस ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी अपनी फलाह किस काम में है। तुम्हारी तरह औरत या किसी लड़की को घूरते रहना बद अखलाकी में दाखिल है। जिक्रिया ने जवाब दिया, नाहिद, मैं प्यासा हूँ, मैं यहाँ पानी पीने आया हूँ। नाहिद ने बेरुखी से कहा, झूठ, तुम यहाँ मेरे पास पानी पीने हरगिज नहीं आए। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्या लेने आए थे और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि तुमने मेरे पास आने की जरूरत क्यों की है। जिक्रिया ने कहा, अगर तू दिलों का हाल पूछे बगैर ही जान सकती है तो शायद वली है। अब मैं और क्या कहूँ? नाहिद इसको छोड़कर कहीं गायब हो गई। जिक्रिया हाथ मलता रह गया, लेकिन इसी वक्त इसको अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। जिक्रिया जैसे ही मुड़ा अपने सामने सफीउद्दीन को देखकर परेशान हो गया। सफीउद्दीन बिल्कुल संजीदा था। जिक्रिया ने कोशिश की सफीउद्दीन से नजरें मिलाए बगैर ही चुपचाप चला जाए, लेकिन सफीउद्दीन इसके शाने पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कहा, जिक्रिया, तू यहाँ क्या लेने आया था? जिक्रिया के पास इस सवाल का जवाब ना था। बोला, पता नहीं मैं यहाँ क्या लेने आया था, शायद पानी की तलब में। सफीउद्दीन ने कहा, नहीं, गलत। तू जरा सी देर के लिए मेरे साथ चल, मैं तुझसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ। जिक्रिया इतना बेवकूफ़ नहीं था कि वो सफीउद्दीन की इन जली कटी बातों का मतलब ना समझता हो, लेकिन फरार की भी कोई राह नहीं थी। वो खामोशी से सफीउद्दीन के साथ इसकी चौपाल में चला गया। इस वक्त चौपाल में सफीउद्दीन के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। सफीउद्दीन ने सबको डांटा, तुम सब बाहर जाओ और इसका ख्याल रखो कि कोई शख्स चौपाल में ना आने पाए। मैं इस नौजवान से चंद जरूरी बातें कर रहा हूँ। बच्चे चले गए। सफीउद्दीन के बिगड़े हुए तेवर बता रहे थे कि गोया जिक्रिया के पूरे मंसूबे पर पानी फिर चुका है और इसने अपने कायम करदा एतमाद को एक लड़की की वजह से ज़ाया कर दिया है। चौपाल में सुकूत तारी था। अचानक सफीउद्दीन ने पूछा, जिक्रिया, क्या तुझे अब भी पानी की तलब महसूस हो रही है? जिक्रिया के मुंह से बेख्तियार निकल गया, नहीं, अब बिल्कुल प्यास नहीं लग रही। लेकिन फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। जल्दी जल्दी बात बनाते हुए कहा, मैं प्यासा तो अब भी हूँ, लेकिन अब मैं ये भी पसंद नहीं करता कि इस सिलसिले में आपको तकलीफ दूँ। सफीउद्दीन ने कहा, जिक्रिया, तुम मुझसे अड़ने की कोशिश न कर। मैं इंसानों की परख का गैर मामूली सलीका रखता हूँ। तेरे जवाब में खोट है, झूठ है। अगर थोड़ी देर पहले प्यासा था तो तुझे अब भी प्यासा ही होना चाहिए। जिक्रिया ने अपना सर पकड़ लिया। मोहतरम सरदार, आप यकीन फरमाएं, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपका बेहद एहसानमंद हूँगा अगर आप इस वक्त मुझसे सवाल जवाब के बगैर यहाँ से चला जाने दें। सफीउद्दीन ने जवाब दिया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुझको यहाँ तक राय दे सकता हूँ कि गुफ्तगू में तवालत ना आए। मैं जो भी बात करूँगा साफ साफ करूँगा। इस तरह मैं तुझसे यही उम्मीद करूँगा कि तू भी किसी किस्म की लगी लपटी नहीं रखेगा और हर बात साफ साफ खोल कर मेरे सामने रख देगा। जिक्रिया ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा, ऐसी वैसी कोई बात है तो होने दीजिए, क्योंकि वो बड़ी तकलीफ बात है हम दोनों के लिए। इतना कहकर वो खड़ा हो गया। सफीउद्दीन भी खड़ा हो गया। पूछा, ये चले कहाँ? मैं तो तुझको यूं ही नहीं जाने दूंगा। नौजवान, तूने मेरी बेटी नाहिद को बहलाने फुसलाने की कोशिश की। तेरे ख्याल में क्या मैं इतना ही बेवकूफ़ हूँ जितना कि नजर आता हूँ? कुछ देर खामोश रहकर फिर बोला, नौजवान, आज तो ये इकरार करना होगा कि तू मेरी बेटी नाहिद में बड़ी दिलचस्पी ले रहा है। इसके पास जाना या जाने की तदबीरें सोचना गलत है।
क्या यूं ही बेसबब? हरगिज नहीं। जिक्रिया बेहद शर्मिंदा था। इसने आहिस्ता से कहा, सरदार मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन सफीउद्दीन के लहजे में गुस्सा या तड़प नहीं थी जिसका वो अंदाज़ा लगा रहा था। सफीउद्दीन ने कहा, मैंने तुझे अपने कुंबे में शामिल कर लिया है, क्या तू ये मेरा एहसान भूल गया? जिक्रिया ने जवाब दिया, नहीं, मैंने आपका एहसान भुलाया नहीं है। सफीउद्दीन ने कदरे गर्मी दिखाई बोला, तो किस बात का एहसानमंद है? जिक्रिया ने जवाब दिया, सरदार के पास मैं सरतापा एहसानमंद बनकर उठता बैठता हूँ और इसी गर्म गुस्तरी और जर्रा नवाजी का ये नतीजा है कि आज मैं और मेरे साथी खुद को बेसहारा नहीं समझते। सफीउद्दीन ने तंजन कहा, ज्यादा बातें ना बना, मैं तुझसे पूछता हूँ कि अब भी तेरे इरादे हैं कि तू नाहिद का पीछा नहीं छोड़ सकता? वो अपने चचा के लड़के के साथ मंसूब है। तेरी जरा सी बेउसूली और बेरहरवी नाहिद के साथ साथ मुझे भी उलझनों में डाल देगी। जिक्रिया ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, बोला, मोहतरम सरदार आप मुतमईन रहें, मैं आपको और आपकी बेटी को किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सफीउद्दीन की नजरें जिक्रिया पर गड़ कर रह गई थी और जिक्रिया की नजरें जमीन में गड़ गई थी। दोनों ही कुछ देर के लिए चुप हो गए। आखिर जिक्रिया एक बार फिर बोला, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए मोहतरम सरदार, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि आइंदा आपको मुझसे किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। सफीउद्दीन ने पूछा, इसका मतलब? बात साफ साफ कर। जिक्रिया ने जवाब दिया, इसका साफ साफ मतलब यह है कि नाहिद का ख्याल तक अपने दिल में नहीं लाऊंगा। मैंने इससे हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर ली। सफीउद्दीन के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से में बोला, बुज़दिल कहीं का, मैं अभी थोड़ी देर पहले तुझको बहादुर और उसूली नौजवान समझ रहा था, लेकिन ना तो तू उसूली है और ना ही बहादुर, क्योंकि बहादुर लोग अगर कहीं मोहब्बत करते हैं तो उस राह में अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं, और अगर तू एक उसूली नौजवान होता तो अपनी मोहब्बत के उसूल को इतनी आसानी से बालाए ताक ना रख देता। फिर बड़े तंज से कहा, जो नौजवान अपनी मोहब्बत में शिद्दत और हिद्दत से महरूम हो वो ज़िंदगी के किसी शोबे में शदीद और हदीद नहीं हो सकता, तो उसे किसी बड़े काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिक्रिया ने जवाब दिया, मोहतरम सरदार आप मुझको समझने में गलती कर रहे हैं, मेरे दिल में भी मोहब्बत की शदीद आग रोशन है और मैं इतना ही उसूली इंसान हूँ जितना कोई बड़े से बड़ा इंसान हो सकता है। लेकिन जब मुझे बात मालूम हुई कि नाहिद अपने चचा के बेटे से मंसूब है तो मैंने अपने लिए पसंद कर लिया कि इश्क की आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा, मगर नाहिद का ख्याल भी दिल में ना लाऊंगा। सफीउद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, नौजवान मोहब्बत खुद गर्ज होती है और उसूल हर जगह उसूल नहीं रहते। और फिर ये कि तूने मेरी इस बात पर बड़ी आसानी से यकीन कर लिया कि नाहिद अपने चचा के बेटे के साथ मंसूब हो चुकी है। जिक्रिया घबरा गया, मगर वो लाजवाब हो चुका था। परेशान बुखलाहट में कोई जवाब न दे सका। सफीउद्दीन ने कहा, नौजवान मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तुझको अपने ख़ानदान में दाखिल करूं। मैं कई दिनों से बात महसूस कर रहा था कि तू मेरी बेटी नाहिद में बड़ी दिलचस्पी ले रहा है, चुनांचे मैंने फैसला कर लिया कि तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा। अगर तू इसमें पूरा उतरा तो मैं नाहिद को तेरे हवाले कर दूंगा। जिक्रिया ने सर उठाया और मुल्तजी नजरों से सफीउद्दीन को देखने की कोशिश की, मगर नजरें न मिला सका। सफीउद्दीन जरा देर चुप रहकर फिर बोला, बज़ाहिर कितनी बेगैरती की बात है कि बाप अपनी बेटी की बाबत किसी नौजवान से इस किस्म की बातें करे, लेकिन मैं आम लोगों से मुख्तलिफ हूँ। मैंने तेरा इम्तिहान लिया, अफसोस के तू। जिक्रिया को ऐसा लगा गोया दिल के बेपाया समंदर को ज़ब्त व एहतियात और हज़्म सब्र के जिन पुश्ती बानों ने महसूर किया, वो सफीउद्दीन की पुरुमीद बातों के रेले में खसो खाशाक की तरह बह गए थे। जिसने आहिस्ते से पूछा, क्या मैं आपके इस इम्तिहान में वाकई नाकाम हो चुका हूँ? सफीउद्दीन ने जवाब दिया, नौजवान एक बार तो तू नाकामी हो चुका है, एक मौका था जिसको तूने ज़ाया कर दिया। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा, तुझको कोई और मौका मिलेगा या नहीं, बहरहाल देखा जाएगा। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं तुझको अपने ख़ानदान में शामिल कर लेता। जिक्रिया की उलझनों में सफीउद्दीन ने कुछ और इजाफा कर दिया था। सुल्तान उस्ताद अरसलान और खानकाहों के राहिब ये कहते थे कि जो मर्द या नौजवान औरतों के हाथों मफ्तू हो जाते हैं वो ज़िंदगी के हर मैदान में मफ्तू रहते हैं। लेकिन सफीउद्दीन इसके बरक्स बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जो नौजवान अपनी मोहब्बत में शिद्दत और हिद्दत से महरूम हो वो ज़िंदगी के किसी शोबे में शदीद और हदीद नहीं हो सकता, इससे किसी बड़े काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। सफीउद्दीन ने कहा, नौजवान तू किस सोच में पड़ गया, जा इत्मीनान से सोचता रहे, सोचने के लिए बड़ा वक्त पड़ा है, मैं तेरे फैसले का मुंतज़िर रहूँगा। जिक्रिया ने पूछा, मोहतरम सरदार किस फैसले का? सफीउद्दीन ने जवाब दिया, अब तो जिन भूल भुलैयों में घिरा खड़ा है इससे किसी तरह ओहदा बरा होने की कोशिश करता रहे, इससे निकलने का फैसला किस नौ का है, वगैरह वगैरह। अगर इसके अलावा भी मेरी बात का कोई मतलब है तो तू इसको भी समझने की कोशिश करेगा। जिक्रिया के सर में दर्द उठ खड़ा हुआ। दिलो दिमाग पर इतना बोझ आ चुका था कि वो इसमें दबा चला जा रहा था। वो बार बार कुल्क महसूस करता कि अफसोस इसने ज़रा सी कोताही और नासमझी में नाहिद को खो दिया। सुरीउल हुसूल नाहिद को ज़ाया कर दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे हिम्मत ओद कर आई
اور اس نے ایک نئی امنگ، ایک نیا ولولہ اور ایک نئی تڑپ محسوس کی۔ ناہید نے ایک بار پھر اس کے دل میں انگڑائی سی لی اور وہ اس کے کیف و سرور میں ڈوبتا چلا گیا۔